So student, today in this lecture we will discuss about the Indian economy. Before discussing the Indian economy in detail, let's discuss about what is the economy. So let's start the topic. So student, today we will discuss about the Indian economy. But before discussing about the Indian economy, let's discuss about the meaning of economy and what is economy. The economies involve all production and consumption related activities as well as the trade of goods and services in a country. An economy is often synonym of economic system. When we talk about the economy, अगर हम बात कर रहे हैं कि what is the economy of our nation and या some other nation, तो it means हम किसी एक फैक्टर को लेकर बात नहीं कर रहे हैं. We are discussing and we have to think and analyze about the various factor which directly or indirectly affect the economy of the nation. Economic is a social science concerned with the production, distribution, and consumption of the goods and services. It studies how individual businesses, government, and nation make choices on allocating the resources to satisfy their wants, needs, and try to determine how these groups should organize and coordinate effort to achieve the maximum output. It means इकोनॉमी में हम ये पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें किस तरीके से यूज करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, हाउ वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्शन विच वी हैव मेड एंड क्या गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन लोग या इंडिविजुअल या बिजनेसेस करते हैं या हमारे कस्टमर करते हैं, यू कैन से हमारे नेशन के लोग करते हैं. अकॉर्डिंगली हमें चीजें बनानी है. तो ओवरऑल वी कैन से कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनका कैसे हमें यूटिलाइजेशन करना है, क्या चीज़ों को यूज करके या फिर इफेक्टिवली यूज करके हमें प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इन सब चीज़ों को हम मिलाकर जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन, और वन नेशन और अदर नेशन ऑल्सो. Now let's discuss about the types of economics. There are two types of economics, microeconomics and macroeconomics. Micro means the small unit, the small entity, and we can say we are talking about the one individual unit and one individual business. So microeconomics focuses on how individual consumer or firm make the decision, and macroeconomic studies as overall economy on the both a national and international लेवल. अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम एक सिंगल पर्सन या सिंगल बिजनेस यूनिट की बात कर रहे हैं और उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं या मेथड्स की बात कर रहे हैं. और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ बिजनेसेस एंड द ग्रुप ऑफ यू कैन से फर्म एंड एंटिटीज जो एक नेशन में या इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज होती हैं या वर्क करती हैं और जो अफेक्ट करती हैं इकोनॉमी को भी. So there are some economic indicator which indicate and tells about the actual condition of the economy. So what are the key indicators? GDP, retails, industrial production, employment data, and CPI, etc. So let's discuss about that. GDP, gross domestic product. The gross domestic product is considered by many to the broadest measure of the country's economic performance. It represents the total market value of the all finished goods and services produced in a country in a given year or another period. एक पर्टिकुलर पीरियड में या गिवन ईयर में कितना प्रोडक्शन एक नेशन में, एक कंट्री में हुआ है, ये कितना फिनिश्ड गुड्स तैयार हुआ है, सर्विसेज तैयार हुई हैं, ये सारा कुछ जानना या इसको चेक करना, दैट कम्स अंडर द जीडीपी. और दिस इज द वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक activities, or you can say economic growth. Now, number 2 is retail sales. Reported by the Department of Commerce during the middle of each month, the retail sale report is very closely watched and measure the total receipt or dollar value or the merchandise sold in the stores. So कितना जो production हुआ है वो obviously selling purchasing भी होगा, तो that comes in retail sales. Industrial production. The industrial production report released monthly by the Federal Reserve reports on the changes in the production of factories, mines,
and utilities. One of the closely watched measure included in this report is the capacity of utilization ratio, which estimate the portion of the productive capacity that is being used rather than standing idle in the इकोनॉमी. यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, जो माइंस हैं, वो कितना प्रोडक्शन कर रही हैं, कितनी यूटिलिटीज है उनकी, क्या वो जो प्रोडक्शन कर रही हैं, वो जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, वो क्या उनका इफेक्टिवली यूज हो रहा है या वो रिसोर्सेज आइडल हैं. तो ये सारी चीजें भी एक चीजें इंडिकेटर हैं जो इंडिकेट करती हैं कि इकोनॉमी कैसी है या उसकी ग्रोथ कैसी है या आगे कैसे हो सकती है. The next one is employment data. Generally, sharp increase in employment indicate prosperous economic growth, and likewise potential contraction may be imminent of the if significant decrease occur. तो अब employment data भी it is also indicate the economic condition of the country. कैसा, कितने लोगों को वहाँ पे रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों को रोजगार नहीं है, कितने लोग किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, क्या सिर्फ एग्रीकल्चर वे में है या फिर अदर सर्विसेज में है. ये सारी चीजों का डेटा भी बताता है कि एक कंट्री या एक नेशन कितना प्रॉस्परस है. द नेक्स्ट वन इज द CPI, Consumer Price Index, is the instrument to measure inflation. It is used to estimate the average variation between two given periods in the prices of product consumed by household. It is a composite measurement of trade in the prices of product at a constant quality. ये एक ऐसा इंडेक्स है या यू कैन से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं कि दो गिवन पीरियड में क्या स्टेटस रहा है, क्या महंगाई या फिर क्या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का स्टेटस रहा है, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कंडीशन इन्फ्लेशन की है या क्या है, क्या चीज़ें हाउस होल्ड किसके अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं. वो सारी चीज़ें हमें देखकर एक आइडिया, एक इंडिकेट मिल जाता है कि इंडिकेटर एक आइडिया मिल जाता है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक लेवल एंड ग्रोथ एंड कंडीशन ऑफ द नेशन. टिल येट वी हैव डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी. इकोनॉमी क्या होती है, किस देश की, किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को या ग्रोथ को जानने के लिए व्हाट आर द की इंडिकेटर फैक्टर्स which affect and which reflect the economic level and the condition of the country. तो वो क्या क्या फैक्टर्स है वो अभी हमने डिस्कस किया. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडियन इकोनॉमी. फर्स्ट वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी. India is regarded as one of the fastest growing major economy in the world since 2010, while most emerging economies witnessed a declining trend in the growth rate. India growth rate showed the improvement. बहुत सारी इकोनॉमी में ये देखा गया है कि उनका जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है, बट इंडिया स्लोली इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है. तो अपनी इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है या ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है. बट ड्यू टू सम सिनेरियो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन अभी हर देश की, हर कंट्री की इकोनॉमी कंडीशन डाउन हुई है. बट बिफोर दैट, उससे पहले जो कंडीशन चल रही थी दैट वाज ऑन द इम्प्रूवमेंट लेवल. सो फर्स्ट फैक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वी कैन से national income. Usually income level is used in the determination of the overall well-being and happiness of the country and its citizens. Therefore, it is one of the important basic characteristic of the Indian economy. ये देखना नेशनल इनकम कितनी है, उससे ये आइडिया लगता है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या वेलबींग है, यानी कंट्री के, नेशन के जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या वेलबींग है, उनकी क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि नेशनल इनकम क्या है, यानी कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है. नेक्स्ट वन इज sectoral employment in India. The share of the workforce in agriculture declined from 68.1% in 1983 to 53.2% in 2009 and 10. So these are the data. अगर आप इस data के बारे में लिखेंगे तो you have to write down the present data. So these are the previous data of sectoral employment in India. So हम कह सकते हैं कि in 2020 41.49% of the workforce in India were employed in the agriculture, while the other half was almost evenly distributed among the two other sectors, industry and the services.
While the share of Indian working in agriculture is declining, it is still the main sector of employment. Agriculture में कहीं ना कहीं झुकाव जो नई जनरेशन आ रही है उनका कम हो रहा है, बट स्टिल हमारा जो मेन सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि वहाँ से हम प्रोडक्शन करते हैं और उसको सेल आउट करते हैं. अदर देन दैट इंडस्ट्री एंड सर्विसेज में भी लोगों का एम्प्लॉयमेंट रेट है या लोगों का एम्प्लॉयमेंट है. So this is the sectoral employment in India. It also indicate about the economic condition of the country. The next characteristic of Indian economy is capital formation. Capital formation plays a crucial role in the economic development of the country. See, जब लोग हमारे यहाँ पे एक नेशन में अच्छा अर्न करेंगे, तो जब वो अच्छा अर्न करेंगे तो ऑब्वियसली वो उनकी सेविंग होगी. अपनी लाइफ को करने के बाद, अपने सारे खर्चे करने के बाद अगर वो बचा पाते हैं तो वो उनकी सेविंग में काउंट होगा. और सेविंग होगी तो उस सेविंग को वो कहीं ना कहीं यूज करेंगे, बैंक में यूज करेंगे, एफडी में यूज करेंगे या आरडीज में यूज करेंगे. इस तरीके से उनका खुद का कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा और मनी सर्कुलेशन में भी रहेगा, तो नेशन का भी कैपिटल फॉर्मेशन होगा. तो दिस इज ऑल्सो दी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच टेल्स what is the condition of Indian economy and what is the economic growth of the country. Next one is inflation. Managing inflation is the toughest task of an economy policy maker. Inflation is sustained rise in the general level of prices, and there are many factors which influence the rate of the inflation of an economy. In India, fluctuation in the prices are common occurrence due to the several natural and economical factors. Next one is foreign capital investment. In country like India, the domestic capital is not sufficient for economic growth, and therefore foreign capital is a way of filling the gap between the domestic saving and the foreign exchange government revenue. So जो अब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो हम अगर अपने देश में अपनी कंट्री के अंदर ही कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो गुड, बट इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है by the country or by the individual. That is also a capital formation and that also show the economic growth and the level of the economy. So now we will talk about the economic growth and development. Usually हमें ये लगता है कि ये दोनों words एक जैसे ही हैं या एक दूसरे के synonym हैं. To a layman, these two words or terms appear to be synonyms. However, in the 1950s and 1960s, economics drew a line of demarcation between the economic growth and the economic development. True enough, the concept of economic development is broader than the economic growth. Economic development broader है economic growth में. कैसे? Development is taken to mean growth plus the changes, whereas the economic growth means growth only in the quantitative expansion of the economy. कितनी quantity में 1 2 3 4 इस तरीके से कितनी quantity में बढ़ा है, that is growth. और डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि उसमें हमारी ग्रोथ एंड प्लस चेंजेस क्या आए हैं नेशन में या कंट्री में, वो सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं. तो दीज आर सम पॉइंट्स विच टेल्स यू अबाउट द economic growth and development of the country. Like economic growth does not deal with the environmental issues. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ डील नहीं करती. इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन लाइक डिप्लेशन ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा, हम अगर बात कर रहे हैं इन सारी चीजों की स्पेशली, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन सब फैक्टर्स को हम कंसीडर नहीं कर सकते कि ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना, प्रॉपर यूज करना, इज कम अंडर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज यू कैन से. बट इनका घटना बढ़ना, कितना कैसे घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन. दिस इज द पॉइंट एंड इश्यूज ऑफ environmental issues. So we can say ये सब points हम economic development और growth में enumerate या calculate या indicate नहीं कर सकते. So you have to just read all the points. अब जब हम बात कर रहे हैं कि economic development की, it is a broader sense, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला फैक्टर है एजुकेशन. The first factor which affect the economic development is the education.
जैसा एजुकेशन लेवल होगा, इंक्रीज होगा, अच्छा होगा, अकॉर्डिंगली उस देश का, उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा या फिर आगे इम्प्रूव होगा। अगर एजुकेशन लेवल डाउन है तो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो वी कैन से एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट एंड वाइटल रोल टू रिफ्लेक्ट एंड टू अफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Level of inward investment. Developing countries that can attract inward investment can see significant growth in development due to the higher level of capital and benefit of attracting multinational company into their economy. ये देखना कि कितना इन्वेस्टमेंट अपने इंटरनल, अपनी नेशन के अंदर ही किया जा रहा है। अगर इस तरीके से अगर हमारी कैपिटल फॉर्मेशन भी स्ट्रांग रहेगी एक देश की, एक नेशन की, तो बाहर की कंपनीज या अदर कंट्रीज की कंपनीज इंटरेस्टेड होगी या चाहेगी हमारे देश में आना और अपनी कंपनीज को सेटअप करना। और अगर वो ऐसा करेंगी तो देश की कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ, नेशन की कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो दिस फैक्टर इज ऑल्सो कम्स अंडर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट ऑल्सो इफेक्ट लेवल ऑफ सेविंग एंड कैपिटल। ये इससे ही रिलेटेड है, दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस। if we have the saving and capital formation stronger, हमारी अच्छी सेविंग होगी, अच्छी इंडिविजुअल पर्सन की भी सेविंग होगी और फिर अकॉर्डिंगली नेशन की भी अच्छी सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन होगी, तो उससे हमारा नेशन या कंट्री बहुत स्ट्रांग होगी, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी, एंड देन ये इम्प्रूवमेंट लाएगा और ये आपकी अदर कंट्रीज की कंपनीज भी इन पे इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार होगी, कंपनी सेटअप करने के लिए भी रेडी होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी इवेंचुअली बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर. It also affects the economic development of the nation. Political stability and the protection of private property was ranked as the most important factor of the encouraging firm to invest in the developing country economics. किसी देश में या किसी कंट्री में अच्छे लॉ एंड ऑर्डर होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तभी दूसरी फर्म या दूसरी कंट्रीज के लोग या फिर उधर जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए या अपनी कंपनी सेटअप करने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप करने के लिए आएंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर ही सही नहीं होगा, दे विल नॉट फील द प्रोटेक्टिव इन द कंट्री, so they will not at all come to the country to operate any business, to set up any industry. So this is also play a vital and important role इन दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा अच्छा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, उतना ज़्यादा कंट्री का रेपुटेशन और उसका स्टैंडर्ड भी रहेगा और इट ऑल्सो इफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का घटना बढ़ना कम्स अंडर द एनवायरमेंटल इश्यूज, बट वॉट एवर द रिसोर्सेज वी हैव एंड वॉट एवर द रिसोर्सेज वी आर यूजिंग effectively, that comes under the commercialization and industrial use. तो हमें उसका कैसे यूज करना है, क्या करना है, कितना हमारे ह्यूमन काइंड के लिए हो रहा है, ये सारी चीजें भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वन इज रीजनल इफेक्ट. The effect of a new activity, industry or event on a regional economy, any activity that generate payments and buy product has an effect on others. Sometimes कंट्री के साथ साथ रीजनल इफेक्ट भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इफेक्ट करते हैं, या एक फैक्टर ऐसा होता है कि किसी रीजन स्पेसिफिक चीजें हमारे या प्रोडक्ट हमारे ज्यादा बेचे जाते हैं या पसंद किए जाते हैं अदर कंट्रीज में भी, तो उस रीजन के लोग उसको प्रोडक्ट को बनाते हैं या सर्विसेज को बनाते हैं और उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो वो रीजनल है, एक छोटा क्षेत्र का एरिया है, बट वो बहुत अच्छा और एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में.